नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दादरा नगर हवेली और दमन के नर्सिंग कॉलेज की 127 छात्रों को प्रशासक के हाथों दी गई डिग्री। धर्मपुर से वापी की ओर जा रहे अवैध खेल के लकड़े भरे ट्रक को एलसीबी पुलिस ने पकड़ा। वापी की मोरई औद्योगिक क्षेत्र की बेस्ट वेस्ट पेपर मिल में की भीषण आग। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेशों के प्रशासक के हाथों नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में 127 छात्रों को नर्सिंग की दी गई डिग्रियां। संघ प्रदेशों के प्रशासक के हाथों दमन में 127 छात्रों को नर्सिंग के सर्टिफिकेट दिए गए हैं। दमन के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में लैंप लाइटिंग और ग्रेजुएशन सेमिनार में बीएससी नर्सिंग के 108 और एमएससी नर्सिंग के 19 छात्रों को सर्टिफिकेट दिए गए, जिससे दमन नर्सिंग कॉलेज के 50 और सिलवासा नर्सिंग कॉलेज के 58 बीएससी नर्सिंग छात्र शामिल है। इस अवसर पर दोनों नर्सिंग कॉलेजों के प्लेसमेंट हुए। छात्रों को जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए गए। बीएससी नर्सिंग के दोनों कॉलेजों के 100% छात्रों के प्लेसमेंट हुए हैं। प्लेसमेंट में सिलेक्ट छात्रों को डॉक्टर एचएन हीरानंदानी अस्पताल मुंबई, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई और वाइब्रेंट अस्पताल वापी के साथ अन्य नामांकित अस्पताल में जॉब मिली है। इस अवसर पर प्रशासक ने कहा कि नर्सिंग एक प्रोफेशन नहीं है, पर समाज के दुखी पीड़ित लोगों की सेवा उपचार करने का संकल्प है। तो प्रशासक द्वारा डिग्री और जॉब प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभेच्छा दी गई। Myself before God, and in presence of this assembly, to practice my profession with dedication. I will serve mankind with love and compassion, recognizing their dignity and rights, irrespective of color. हमारे माननीय प्रशासक महोदय सर श्री प्रफुल्ल पटेल हमारे बीच में आ चुके हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर। आप अपने स्थानों को ग्रहण कर सकते हैं। Honorable Administrator sir is back with us. Great achievement often require greater services. अब बारी है मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने का। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दमन और श्री विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिलवासा में स्नातक करने वाले छात्रों को सम्मानित करने का। As scheduled, the meritorious students will initially receive their prizes and thereafter the graduate students will come on the stage to receive the felicitation certificate. Under the category of the best महोदय से felicitation award स्वीकार करते हुए we have amongst us, ladies and gentlemen, Ms. Divya Raut, को जाता है जिन्होंने 76.63% मार्क्स प्राप्त किया है। Ladies and gentlemen, please give a great round of applause to Patel Vishal. The second position goes to Ms. Dimpy Barucha, who has secured 78% of marks in her examination. Ladies and gentlemen, Dimpy Barucha, who has secured 78% of marks, और प्रथम स्थान पे हमारे साथ उत्साह राख्यो। घणुं बधुं विकासना कामो तो कर्या छे, पण एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल तरीके एवुं थाय કે આપણા પ્રોફેશન માટે થઈને સર આપણે આટલું બધું કાર્ય કર્યું છે, ઘણો બધો વિકાસ થયો છે। લક્ષદ્વીપમાં પણ હમણાં નવી નવી નર્સિંગ કોલેજ છે, એને આપણે એપ્રુવલ આપવામાં આવી છે અને સરના વિઝન દ્વારા ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ છે
તે એક માધ્યમ બને છે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષા પૂરી કરવા માટે થઈને. તો સર, હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું આપના આ ઉમદા કાર્ય માટે થઈને. વિદ્યાર્થીઓ, વાત કરીએ તો તમારા વેલકમ ડાન્સથી લઈ અને એક ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલની સ્ટોરીને તમે જે એક આર્ટિસ્ટિક રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરી છે એ ખરેખર ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે. અને કહેવા જઈએ ને તો તમે એવી જગ્યાએ છો. આજે પ્રફુલ્લ પટેલ સર, અમારું તો એક સપનું હોય કે કદાચ સર સાથે બેસવા મળે કે સરને મળવા મળે કે કેમ, પણ આજે આ માધ્યમથી અમારું એ સપનું પૂર્ણ થયું છે. અને અમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે સર એટલા હમ્બલ છે, અને સર હમ્બલ છે એટલે આખી ટીમ જે છે હંમેશા નર્સિંગના વિકાસની વાત હોય, કોલેજની વાત હોય તો ડાયરેક્ટર શ્રી ડૉક્ટર વિકે દાસ સર હંમેશા અમારા કોન્ટેક્ટમાં હોય છે, અને એ પણ હંમેશા એજ્યુકેશનની બાબતમાં એટલો બધો કીન ઇન્ટરેસ્ટ રાખતા હોઈએ છીએ કે આમ તો ઘણી બધી ચિંતા અમે કરતા હોઈએ છીએ નર્સિંગ પ્રોફેશનની, પણ અહીંયા એવું જોવા મળ્યું છે કે સરના દ્વારા અને તમામ ફેકલ્ટીઝ, પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ દ્વારા તમારા બધાને ખૂબ જ કેર કરવામાં આવે છે, અને તમે બધા આવી સંસ્થામાં એજ્યુકેશન લીધેલું છે, એ માટે તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. आज दमन में विवेकानंद हॉल में 2 प्रोग्राम एक साथ हुए हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग के. हमारे 2 कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैं, एक है दमन में, एक है सिलवासा में. और इसमें एक लैम्प लाइटिंग सेरेमनी होता है जिसमें जो नए बच्चे एडमिट होते हैं एजुकेशन में बीएससी नर्सिंग के लिए, उनको 3 महीने बाद एक फंक्शन होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैम्प लाइटिंग सेरेमनी, जिसमें लैम्प लाइटिंग के बारे में उनको दिया जला के लैम्प लाइटिंग करवाते हैं, उनसे ओट लिवाते हैं, और एक पूरा एक कार्यक्रम होता है जो आज किया गया. और सेकंड है ग्रेजुएशन सेरेमनी, जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, और हमारे यहाँ के पूरे बच्चे दमन और सिलवासा के 100% प्लेसमेंट हो गए, तो वो बच्चों का ग्रेजुएशन सेरेमनी रखा था आज, जिसमें माननीय प्रशासक साहब हमारे आए थे और पूरे ऑफिसर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, और ये फंक्शन यहाँ पे हुआ. सर टोटल बच्चे कितने को हुए? टोटल बच्चे जो हैं वो 110 बच्चों का हुआ जो बीएससी के हैं, और 20 बच्चे एमएससी के हैं, तो टोटल 130 बच्चों का आज ग्रेजुएशन हुआ. तो इनका सभी अस्पताल में सर जॉब भी मिल गया? इनको 100% प्लेसमेंट मिल गया है, जिसमें 3 हॉस्पिटल में मेजर उसको मिला है. वाइब्रेंट हॉस्पिटल वाकई, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल मुंबई और हीरानंदानी हॉस्पिटल मुंबई. वलसाड जिले में गैर कानूनी लकड़ियों की तस्करी तेज हो रही हो. जिला एलसीबी पुलिस ने धर्मपुर से वापी की ओर ले जा रहे 11 टन गैर कानूनी खैर की लकड़ियों को किया जब्त. वलसाड जिले में गैर कानूनी लकड़ियों की चोरी और हेराफेरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही है. साथ ही खैर और साग के महंगे लकड़ों की हेराफेरी पर फॉरेस्ट विभाग और पुलिस की लाल आंख करते हड़कंप मचा हुआ है. तो धर्मपुर से वापी की ओर जा रही एक ट्रक को जिला एलसीबी की टीम ने पकड़ा था. पुलिस ने 11 टन गैर कानूनी खैर की लकड़ियां थी. वाहन चेकिंग के दौरान ये ट्रक को पकड़ा गया. पुलिस ने लकड़े और ट्रक मिलाकर कुल 6,10,000 के मुद्दा माल को जब्त कर आगे की जांच शुरू की गई है. वलसाड जिला के कपराड़ा धर्मपुर में पिछले एक सप्ताह में ये चौथी घटना प्रकाशित हुई है. वापी के मोरई स्थित वेस्ट पेपर मिल में लगी थी भीषण आग. वापी के मोरई औद्योगिक क्षेत्र में आई हुई बेस्ट क्विस्ट इंडस्ट्री नाम की पेपर मिल में बुधवार देर रात को किसी अनजाने वजह से आग लग गई थी. कंपनी में कागज का तैयार और कच्चा माल बड़ी मात्रा में हो. थोड़ी ही देर में आग ने भयावह रूप ले लिया था. घटना को लेकर प्रथम वापी जीआईडीसी और टाउन क्षेत्र के फायर फाइटरों की टीम को जानकारी देते तुरंत फायर की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, पर आग ज्यादा फैली हो. ज्यादा फायर फाइटरों की सहायता लेनी पड़ी थी और फायर फाइटरों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की गई थी. इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी, पर आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं पड़ी है. वलसाड के कपराड़ा तहसील के अम्बेठी गांव में 3 दिन पहले हुई खान खनिज विभाग के कर्मचारियों पर किए गए हमले के प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार. कपराड़ा तहसील के अम्बेठी गांव में हार्ड मोरम भरी ट्रकों को पकड़ने वाले खान खनिज विभाग वलसाड के कर्मियों के साथ हमला करने की घटना कुछ दिन पहले घटित हुई थी. इस घटना में दोनों कर्मियों के कब्जे में से
ट्रकों को लेकर फरार होने वाले शख्सों में बलसाड़ जिला पंचायत के सभ्य मितेश और उसके साथी जीतू पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नानापोंडा पुलिस थाने में 3 दिन पहले गैर कानूनी मिट्टी खुदाई करने की प्रवृत्ति में 2 ट्रकों को खान खनिज विभाग के कर्मचारियों ने रोककर जांच करते कर्मचारियों की पिटाई कर ट्रक लेकर फरार होने के प्रकरण में पुलिस ने कार्यवाही करते 2 शख्सों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि भाजपा के नेताओं की दादागिरी बाहर आई है, पर सत्ता के नशे में मदमस्त ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी होते फिलहाल तो राजकीय माहौल गरमाया है, पर पुलिस ने कार्यवाही करते इस गुनाह में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। वापी के डुंगरी फलिया में आए हुए पालिका क्षेत्र में फैला गंदगी का साम्राज्य, लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। वापी के कई क्षेत्रों में प्रदूषण को लेकर लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। कई बार ऐसी समस्याओं के चलते प्रशासन को इत्तला किया जाता है, पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर ज्यों की त्यों समस्या रह जाती है। तो वापी डुंगरी फलिया में आए पालिका क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ दिखाई दे रहा है। डुंगरी फलिया क्षेत्र में जहां देखो वहां गंदगी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वहां के स्थानिक भी परेशान हो रहे हैं। तो दूसरी ओर स्क्रैपों के गोदाम भी आए हुए हो। मार्ग पर गंदगी का साम्राज्य फैला है। साथ ही इस क्षेत्र में खाली प्लॉट के जिसमें कचरा भरा पड़ा है, तो पालिका द्वारा भी इस समस्या पर कोई कार्यवाही नहीं की गई हो। इस समस्या पर अब आखिरकार प्रशासन द्वारा सही कदम उठाया जाए वो आवश्यक बना है। वार्ड नंबर 5 से इस समय इलेक्शन में चुना गया हूँ और महावीर नगर, शिवाजी नगर और डुंगरी फरिया गटर, रोड और पानी, लाइट की कमी है हमारे विस्तार में, और हम चाहते हैं कि नगर पालिका हो या कोई भी अधिकारी हो आकर के स्थल पे देखे, जांच करे, उसके बाद में जो उचित होवे वो काम करें। हम सबको अगर जो पहले तो हम उनको एक बार में कह देंगे कि भैया आप लोग अपना भंगार हटा लो, नहीं तो हम नोटिस दिलवा करके उनके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे। पहले उनको प्रेम से कह देंगे कि भैया अपना ये सब हटा लो, नहीं मानेंगे तो उचित कार्रवाई। देखिए उसकी सूची तो हमारे पास नहीं है, लेकिन किसी को सरकारी बाथरूम मिला है तो किसी को 25 ईंटा 50 ईंटा दे करके, और खुद ही खड्डा खोद करके बेचारे बनाए हैं, उसमें भी बना नहीं बना, किसी को कोई उसका माई बाप नहीं है, ठीक ना। आज यहीं पर भी ये अपना आवास योजना ले रहे हैं, जिनके पास 3-3 तल्ला मकान है वो आवास ले रहे हैं, उसका बिल्कुल हमको तो दीजिए, गरीब आदमी को दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देना चाहिए, जो गरीब है उसको देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई वो सब कुछ रहते हुए और लिया है आवास और 4 तल्ले का मकान बनाया है। बीमारी का जड़ है ये बीमारी, मलेरिया होगा, तरह तरह की बीमारियाँ होंगी, अभी तो डेंगू चल रहा है, ठीक ना। तो इससे तो ये साफ़ सफाई की ज़रूरत सबसे पहले है। गटर का व्यवस्था तो सबसे पहले होना चाहिए। पानी का रोड एक बार के लिए थोड़ा आगे पीछे बन सकता है, वो चलेबुल है, लेकिन नाली और पानी महावीर नगर, शिवाजी नगर, डुंगरी फरिया के लिए पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। महावीर नगर, शिवाजी नगर के लिए एकदम किल्लत का विषय है। वलसाड़ एलसीबी पुलिस ने खड़की हाईवे से शराब तस्करी करते एक टेम्पो को पकड़ा। 16.8 लाख के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर चालक को किया गिरफ्तार। बलसाड़ एलसीबी पुलिस की टीम पुलिस सीमा क्षेत्र में नाइट पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान एलसीबी के पुलिसकर्मी तेजपाल सिंह की जानकारी के आधार पर हितेश भाई और चंदू भाई के साथ खड़की नेशनल हाईवे नंबर 48 स्वागत होटल के सामने वॉच रखी थी। उस दौरान जानकारी वाला टेम्पो नंबर GJ15A2 8693 आते उसे रोककर तलाशी लेते खाकी कलर के पूठे के बॉक्स की आड़ में ले जा रहे विदेशी शराब की बोतलें 4872, जिसकी कीमत 8,07,600 और टेम्पो को कब्जे में लेकर टेम्पो चालक चांद उर्फ बाबू इस्माइल शेख निवासी वापी भड़कमोरा को गिरफ्तार किया गया। इस शराब तस्करी में नीलेश केवड़ी निवासी दमन, लालू सुलपड़ निवासी वापी भड़कमोरा और जिला उर्फ जिगर शख्सों के नाम बाहर आते पुलिस ने तीनों को वांटेड घोषित किया है। गौरतलब है कि पकड़े गए टेम्पो चालक चांद उर्फ बाबू शेख पहले भी शराब तस्करी में पकड़ा गया होने का पुलिस जांच में बाहर आया है।
वापी में श्रेयांश हेयर कटिंग सैलून की आड़ में चल रहे अनलीगल गैस रिफिलिंग कारोबार का पुलिस ने किया पर्दाफाश। श्रेयस हेयर कटिंग सैलून की आड़ में चल रहा था अनलीगल गैस रिफिलिंग का कारोबार। गुरुवार के दिन अचानक शाम 8 बजे दामा भाई की बिल्डिंग में हड़कंप मच गया था। अचानक एक धमाका हुआ और अगल बगल के लोग सभी घबरा गए। लोग बाहर आए तो देखा एक आदमी जिसके कपड़ों में आग लगी हुई थी, वह रोड पर निकलकर भाग रहा था। जैसे तैसे लोगों ने उस आदमी की आग को बुझाया और ताबड़तोड़ उसे अस्पताल लेकर गए। आपको बता दें कि जिस दुकान में यह धमाका हुआ वहां पर अवैध रूप से बड़े गैस के सिलेंडरों में से छोटे गैस के सिलेंडरों में गैस रिफिलिंग का काम किया जाता था, जिसमें अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई और धमाका हो गया, जिस वजह से दुकान का शटर उड़ गया था। आनन फानन में जिस व्यक्ति के शरीर में आग लगी थी उसे प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया था। घटना के 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी उस एरिया में पुलिस नहीं पहुंची थी। यह विस्तार है डुंगरा कॉलोनी से सटे सलम विस्तार का, जहां काफी मात्रा में मजदूर रहते हैं जो कंपनियों में नौकरी कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जिन्हें गैस के लीगल कनेक्शन लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वह अनलीगल तरीके से छोटे छोटे 5 लीटर के गैस के सिलेंडर लेकर अपने घरों में खाना बनाते हैं। डुंगरा कॉलोनी में अधिकतर लोग परप्रांतीय और कामकाजी मजदूर हैं। इस वजह से यहाँ लोगों को गैस की काफी दिक्कत होती है, जिस वजह से इन्हें अवैध छोटे गैस सिलेंडर लेना मजबूरी होती है। इनका फायदा अवैध गैस रिफिलिंग वाले उठाते हैं। गैस के 14 किलो की कीमत लगभग 19 रुपये है, जहां 1 किलो गैस की कीमत लगभग 64 से 65 रुपये होती है। वहीं ये अवैध रिफिलिंग कारोबारी जरूरतमंदों से 100-110 रुपये लेते हैं, जिसके लिए मजदूर मजबूर बने हैं। पार्टी के एक पटेल परिवार द्वारा अपने बेटे की सालगिरह पर एक नई राह दिखाते हुए निराश्रित और जरूरतमंद बच्चों के साथ मनाई सालगिरह। हर एक माता पिता अपने बच्चों की सालगिरह भव्य तरीके से मनाते हैं, पर इस सालगिरह के पीछे होने वाला खर्चा अगर जरूरतमंदों को पहुंचे तो आज के वक्त के अनुरूप अति आवश्यक बना है। ऐसे ही इच्छा पार्टी के पटेल परिवार ने व्यक्त कर अपने बच्चे की सालगिरह पर जरूरतमंदों को सहाय रूप होकर यादगार बनाने की इच्छा का निर्धार कर जांच के दौरान पार्टी तहसील के सुखेश देवजी फलिये में अनाथ घर बगैर के स्लम क्षेत्र के निराश्रित 35 जितने बच्चे जो बच्चों की हॉस्टल में रहकर पढ़ते होने का वहां के स्थानिक युवा चेतन पटेल और संचालक लहानू भाई का संपर्क कर माहिती एकत्रित कर पटेल परिवार ने उनके लड़के दिहान की 3री सालगिरह पर इन बच्चों को सहाय रूप होकर निःशुल्क मेडिकल सहाय मिले, उस उद्देश्य से बच्चों में आंखें और दांतों की जो भी समस्या हो उपचार के लिए पटेल परिवार ने सरकारी निवृत्त कर्मचारी आंख के डॉक्टर दिनेश भाई राजपूत और पार्टी में अक्षय डेंटल के प्रख्यात दांत के डॉक्टर तपन भाई देसाई का संपर्क कर उनकी ये भावना व्यक्त करते थोड़ी सी देर करे बगैर इस सेवा यज्ञ में सहभागी बनने का स्वीकार किया था। और इस सेवा यज्ञ में डॉक्टर तपन देसाई के मार्गदर्शन में डॉक्टर भाविन, डॉक्टर देवांगी पटेल सहित की टीम ने दांतों की जांच कर ज्यादा उपचार किए निःशुल्क सेवा प्रदान करने की तैयारियां की गई थी। इस तरह नई राह पकड़कर गलत खर्चों को बंद कर सहकारियों से पुण्य कमाने की राह चुनी है। શાળામાં જે કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં આંખની અને દાંતની તપાસ થઈ છે અને ઘણા બધા બાળકો આવ્યા છે જેમને દાંતની ટ્રીટમેન્ટની જરૂરિયાત છે, તો લોકોને અપીલ કરું છું કે આ શાળાની તપાસ કરે અને લોકોને મદદ કરે। ઘણા બધા બાળકો એવા છે જેમને દાંતની ટ્રીટમેન્ટની જરૂરિયાત છે, તો અહીં એક સારી રીતે કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં અમારી અક્ષર ડેન્ટલ ક્લિનિકની ટીમ તરફથી બાળકોનું ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું હતું અને ખૂબ જ સારી રીતે આયોજન થયું છે અને ચેકિંગ પણ બરાબર રીતે થયું છે। હવે જે પણ બાળકોને દાંતની ટ્રીટમેન્ટની જરૂરિયાત છે એ લોકોને ટ્રીટમેન્ટ અમારી તરફથી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે। શ્રી
ઉજ્જવલભાઈના છોકરાની બર્થડે નિમિત્તે આશ્રમ શાળા ચુકેશ દેવજી ફળિયા ખાતે આંખની તપાસ તેમજ દાંતની તપાસ માટેનો આંખનો કેમ્પ અને દાંતનો કેમ્પ બંને અહીંયા રાખેલા હતા. આજે લગભગ 70 જેટલા છોકરાઓની આંખની તપાસ તેમજ દાંતની પ્રાથમિક તપાસ કરવામાં આવી, જે દરમિયાન ખામીવાળા છોકરાઓ જે છે એમને સારવાર માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. ઉજ્જવલભાઈ તરફથી જેટલા છોકરાઓ આજે હાજર હતા એ તમામને ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. આ શાળા ખૂબ જ અંદરના ખૂબ જ આદિવાસી વિસ્તારમાં આવેલ હોય અને ચેતનભાઈના સંચાલક છે અને લાહનુભાઈની સાથે મળીને જે લોકો કાર્ય કરી રહ્યા છે એ ખૂબ જ ઉમદા છે. અમારી અપીલ છે કે આ શાળાઓને નાણાકીય સહાય કરતાં પણ બીજી આર્થિક રીતે અથવા છોકરાઓને જે ખાવાનું ને એ જે રેગ્યુલર ટાઈમસર મળી રહે તે રીતની કંઈક વ્યવસ્થા થાય એવું કંઈક આયોજન થાય તો ઘણું સારું પડે એમ છે. ગામના સરપંચશ્રીને પણ વિનંતી કરું છું કે આ શાળા પ્રત્યે થોડું વિશેષ ધ્યાન આપે. ખૂબ જ ગરીબ શાળા છે અને અનાથ છોકરાઓના માટેની આ શાળાઓ છે, માટે ખાસ ધ્યાન આપવા विनती है. उमरगांव टाउन स्टेशन में नवनिर्मित होने वाले ग्राम पंचायत कचहरी का विधायक रमन भाई पाटकर के हाथों किया गया खातमुहूर्त. उमरगांव टाउन स्टेशन मुख्य मार्ग पर दी गई अंदाजित 1000 चौरस मीटर में ग्रामजनों की सुविधा के लिए निर्माण होने वाली सुविधा अपनी ग्राम पंचायत कचहरी के खातमुहूर्त के अवसर पर विधायक रमन भाई पाटकर, उमरगांव तहसील विकास अधिकारी अक्षय सिंह राजपूत, जिला पंचायत बांधकाम समिति के अध्यक्ष मुकेश भाई पटेल, जिला पंचायत दंडक अग्रणी उद्योगपति ईश्वर भाई बारी, उमरगांव इंडस्ट्री एसोसिएशन के भगवान भाई, नारायण भाई दहाड़, गांव के उपसरपंच सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे थे. દાડ ગ્રામ પંચાયત ગ્રામ સચિવાલય જે અમારું એક નાનકડું ગામ જે પંચાયત વિહોણું હતું એ આજે દાડ ગ્રામ પંચાયતનું ગ્રામ સચિવાલય જેને આજે ખાતમુહૂર્ત ભૂમિપૂજન કરેલ છે, જે અંદાજિત 25 થી 30 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે લોકભાગીદારીમાં બનશે અને મારા ગામના લોકોને સેવાના કાર્ય પરિપૂર્ણ થાય એ ઉપયોગથી એ હેતુથી આજે અમે ગામવાળા બધા ભેગા થઈ અને પ્રભુ શ્રી ગણપતિ બાપાની પૂજા કરી અને આજે ભૂમિપૂજન કરેલું હતું. એમાં જે પધારેલા દરેક જિલ્લાના તાલુકાના પદાધિકારીઓ અને મારા ગ્રામના દરેક પ્રજાજનોનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય ભારત. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे. दादरा नगर हवेली और दमन के नर्सिंग कॉलेज की 127 छात्रों को प्रशासक के हाथों दी गई डिग्री. धर्मपुर से वापी की ओर जा रहे अवैध खैर के लकड़े भरे ट्रक को एलसीबी पुलिस ने पकड़ा. वापी के मोरई औद्योगिक क्षेत्र की बेस्ट वेस्ट पेपर मिल में की भीषण आग. तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार. नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे. नमस्कार.